નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. અસલી ભ્રષ્ટાચારી કોણ છે? તમને કોઈને ખબર છે કે નહીં? અસલી ભ્રષ્ટાચારી જે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઈડીસીડીની જેમના ઘરે રેડો પડાવે છે ત્યાર પછી એમને જેલના હવાલે કરવામાં આવે છે ને, એ અસલી ભ્રષ્ટાચારી નથી. અસલી ભ્રષ્ટાચારી એ છે કે જેમના ઘરે ઈડીસીડીની રેડો પડે છે, બેનામી સંપત્તિઓ મળે છે અને ત્યાર પછી એ નેતા ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન્ટ કરી લે છે અને એમની સંપત્તિ છૂટી કરી દેવામાં આવે છે અને એમને પરત કરવામાં આવે છે. એ સૌથી મોટો ભ્રષ્ટાચારી નેતા છે. હમણાં તમે મહારાષ્ટ્રનો જ દાખલો જોયો હશે. અજીત પવારના ઘરે ઈડીસીડીની રેડો પડે છે, 1000 કરોડ રૂપિયાની બેનામી સંપત્તિ મળે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન્ટ કરી લીધી છે એટલે એ સંપત્તિ પાછી એને છૂટી કરી અને એને પરત કરી દેવામાં આવી છે. હવે વિચાર કરો તમે, આનાથી મોટો ભ્રષ્ટાચારી બીજો કોણ હોઈ શકે? શું સંજય સિંહ ખરેખર ભ્રષ્ટાચારી હતા? મનીષ સિસોદિયા આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ખરેખર ભ્રષ્ટાચારી હતા? અરવિંદ કેજરીવાલ ખરેખર ભ્રષ્ટાચારી હતા? આ વિશે તમારું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો. પરંતુ એમના ઘરે ઈડીસીડીની ખોટી રેડો પડાવવામાં આવી અને એમને જેલના હવાલે કરવામાં આવ્યા. છતાં એ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ન ગયા. એટલે આજે પણ આ મૂર્ખ જનતા, એમના અંધભક્તો જે છે એમની વાત કરું છું, એ આ લોકોને ભ્રષ્ટાચારી સમજે છે. જો એ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન્ટ કરી લીધી હોત તો એમના અંધભક્તો પણ અરવિંદ કેજરીવાલને ઈમાનદાર સમજે, સંજય સિંહને ઈમાનદાર સમજે, મનીષ સિસોદિયાને ઈમાનદાર સમજે. પણ આ વાતને લઈને અરવિંદ કેજરીવાલ ખૂબ ગુસ્સે થયા છે. અરવિંદ કેજરીવાલનું કહેવું છે કે જે લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરે છે અને ત્યાર પછી એમના ઘરેથી ઈડીસીડીની રેડો પડ્યા બાદ જે સંપત્તિઓ મળી આવે છે ને, એ સંપત્તિઓ જે ઈડીસીડી જપ્ત કરે છે અને એ નેતા ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન્ટ કરે ને તો એ સંપત્તિઓને એમને પરત સોંપવામાં આવે છે. આનાથી મોટો ભ્રષ્ટાચારી દેશમાં કોઈ ન હોઈ શકે, જેમણે દેશની હાલત એકદમ બદતરથી બદતર કરી નાખી, જેને દેશને અંદરથી ખોખલો કરતા જાય છે આ ભ્રષ્ટાચારીઓ. અને એ જ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન્ટ કરી લે છે. ત્યારે આ વાતને લઈને અરવિંદ કેજરીવાલે જે રીતે નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધ્યું છે, દોસ્તો સાંભળો તમે અરવિંદ કેજરીવાલ શું બોલ્યા છે. आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी. पूरे देश में रोज यही नौटंकी चल रही है. कभी इस राज्य में जाके कहते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री चोर है, कभी उस राज्य में जाके कहते हैं यहाँ के नेता चोर है. 2 दिन में वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और मोदी जी उनको कोई मंत्री बना देते. आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा. आज इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है? इनका सिस्टम ये नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है. लिस्ट बना लेते हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, फिर सीबीआई को फोन जाता है इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो. संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी. भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया. भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया कि अगर कोई एक दोस्त देश चला रहा है तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक है. ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे. मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? तो हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनको अंधभक्त कहा जाता है कि नहीं है? उनसे उलझना मत. 2 कैटेगरी है, कोई भी आदमी या तो अंधभक्त है या देशभक्त है. अंधभक्त देशभक्त नहीं हो सकता और देशभक्त अंधभक्त नहीं हो सकता. बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है. इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो चुका है. मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को फांसी तो दे दोगे, गोली तो मार दोगे. कहते मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम. तो आज मैं एक पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को. प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा. प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं.
मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ असल में लड़ रहे होते, सचमुच में लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आपको सपोर्ट करता, आपका समर्थन करता। मेरे को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है, मैं देश के लिए आया हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं, ये कोई आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आए, ये देश बदलने की उम्मीद लेके आए हैं सब लोग। हम सब लोग आम आदमी पार्टी वाले आपका समर्थन करते अगर आप वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते। मोदी जी एक स्टेट में गए, जाके उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, बोले इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इनको मैं जेल में डालूंगा। भाई साहब, 4 दिन के बाद उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मोदी जी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? यह तो नौटंकी है, यह तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और यह एक बार हुआ तो सोच लेते, पूरे देश में रोज यही नौटंकी चल रही है। कभी इस राज्य में जाके कहते हैं कि यहां का मुख्यमंत्री चोर है, कभी उस राज्य में जाके कहते हैं यहां के नेता चोर है। 2 दिन में वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और मोदी जी उनको कोई मंत्री बना देते हैं, कोई कुछ बना देते हैं, सब लोगों को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है दोस्तों। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ। मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। आपका बेटा अगर किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दे, इनकी पार्टी में चले जाओ, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, आप खुलेआम घूम लेना। आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना ही बड़ा डाका डाल लो, कितना ही बड़ा अपराध कर लो, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा आपको। आज क्या माहौल है? भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया। जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया, भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना। क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल बाहर तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है, जिसने बेईमानी कर रखी है, उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा, वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कट्टर ईमानदार है। पूरे देश में आज चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक दोस्त है। कौन है? कौन है? कहते हैं प्रधानमंत्री जी उस एक दोस्त के लिए ही काम करते हैं। पूरे देश में चर्चा है, मैं नहीं कह रहा, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, एक ही दोस्त के लिए काम करते हैं। और आजकल तो चर्चा उल्टी होने लगी है कि असल में ये दोस्त ही देश चला रहा है, सारे निर्णय वो दोस्त ही ले रहा है, प्रधानमंत्री जी निर्णय नहीं ले रहे। जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है। लोग मेरे को आके बताते हैं कि जी दोस्त ही देश चला रहा है, कानून उस दोस्त के ऑफिस से बन के आते हैं और पास होते हैं, वो दोस्त ही निर्णय लेता है। और जब आप वोट डालने जाते हो, आप सोचते हो मैंने मोदी जी को वोट दिया, आपका वोट मोदी जी तक नहीं पहुंचता, आपका वोट मोदी जी के जरिए उनके दोस्त तक पहुंचता है, आपका वोट दोस्त के पास जाता है। जब आप वोट डालने जाओ तो यह समझ लेना, यह स्थिति बेहद खतरनाक है कि अगर कोई एक दोस्त देश चला रहा है तो यह स्थिति बड़ी खतरनाक है। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी मोदी जी। अंग्रेजों ने भी यही सोचा था। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खूब बगावत किया करते थे। अंग्रेजों ने सोचा इसको जेल में डाल दो, उन्होंने भगत सिंह को जेल में डाल दिया।
जैसे ही जेल में डाला, घर घर के अंदर भगत सिंह की आवाज पहुंच गई दोस्तों। फिर उन्होंने सोचा भगत सिंह को फांसी दे दो, भगत सिंह को फांसी दे दी। भगत सिंह के विचार और भगत सिंह की आवाज आज 100 साल के बाद भी इस देश के कोने कोने में गूंज रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मेरे को गिरफ्तार तो कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? मेरे विचारों को कैसे रोकोगे? मेरी सोच को कैसे रोकोगे? मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को फांसी तो दे दोगे, गोली तो मार दोगे। कहते मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम। तो आज मैं एक पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की वो क्या कहते हैं, नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो। 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चालू कर दो। ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो। इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं उनको सबको जेल भेज दो। देखो मैं तो क्या, ये सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर इस देश को कोई एक दोस्त चलाएगा, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को, पापियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, तो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश का एक एक बच्चा आपकी खिलाफत करेगा। आज इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है? इनका सिस्टम यह नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है। लिस्ट बना लेते हैं, जो जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो। फिर सीबीआई को फोन जाता है, इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढो, इसके खिलाफ कुछ ढूंढो। अगर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कुछ मारो, किसी को पीटो, इसके घर में सबूत डाल दो, फर्जी केस बना दो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो। यह सिस्टम आज इन लोगों ने बना रखा है। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। आज ये शपथ लेने के बाद आप लोगों को घर घर जाना है, पूरे हरियाणा के अंदर एक एक घर में जाना है। डरना नहीं है, मन से डर निकाल देना। आप में से एक एक आदमी को भगत सिंह बनना है। ये कहते हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, ये इतने सारे जो सामने बैठे हैं सारे केजरीवाल है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? हजारों लाखों केजरीवाल है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? आप सब लोग को केजरीवाल बनना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। घर घर में जाना है और ये सारी बातें बतानी है कि किस तरह से देश को लूटा जा रहा है, किस तरह से पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। जब आप किसी के घर में जाओगे, उनसे बात करोगे, तो हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनको अंधभक्त कहा जाता है कि नहीं है? उनसे उलझना मत। दो कैटेगरी है, कोई भी आदमी या तो अंधभक्त है या देशभक्त है। अंधभक्त देशभक्त नहीं हो सकता और देशभक्त अंधभक्त नहीं हो सकता। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं, उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। देशभक्तों से बात करना बस। देशभक्त आपकी बात सुनेंगे, वो देश की तरक्की चाहते हैं, भारत की तरक्की चाहते हैं, भारत माता की तरक्की चाहते हैं। घर घर के अंदर जाना। आज सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है केंद्र के अंदर बैठी भ्रष्ट भाजपा सरकार को हराना। जितने देश के अंदर देशभक्त है, सबको इकट्ठे होकर एक ही काम करना चाहिए, किसी भी तरह इस सरकार को हराना है। और जितनी युवा शक्ति है, सभी युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला भारत, उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी है और आपका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। सभी युवाओं को मैं आज अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, इस देशभक्त पार्टी के साथ जुड़े, कट्टर ईमानदार पार्टी के साथ जुड़े। चूंकि आज इतने सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, इतने सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की विचारधारा 3 स्तंभों पे खड़ी है। 3 स्तंभ है हमारे। आम आदमी पार्टी में आके आपको केजरीवाल की भक्ति नहीं करनी, आपको किसी नेता की भक्ति नहीं करनी। हमारी पहला स्तंभ है, हमारी पहली विचारधारा है कट्टर देशभक्ति। कट्टर देशभक्ति। आपको भारत माता के लिए अपना तन मन धन परिवार, पहले फर्स्ट नेशन फर्स्ट, पहले देश, आपको उसके लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहना अगर जरूरत पड़े तो। दूसरी विचारधारा है कट्टर ईमानदारी। बेईमानी को हम गद्दारी का दर्जा देते हैं। अगर कोई बेईमानी करता है समाज के साथ, देश के साथ, कोई भी बेईमानी करता है, वो इसका मतलब देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आपको ईमानदारी से रहना है। और तीसरा है इंसानियत। चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, जरूरत पड़ने पे सबको एक दूसरे की मदद करनी है,
किसी का दिल नहीं दुखाना। कोई बीमार हो, कोई कैसा भी हो, सबकी मदद करनी है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, चाहे कोई हो, सबकी मदद करनी है एक दूसरे की। ये 3 विचारधाराएं हैं आम आदमी पार्टी की। इसको सब लोग साथ लेके जाना। पूरे देश के अंदर अभी एक तरह से कीचड़ फैला हुआ है जिसमें इनका ये कमल खिला हुआ है। इस कीचड़ की सफाई कैसे करोगे? झाड़ू से। इस कीचड़ की सफाई जिस दिन कर दी, कमल अपने आप खिलना बंद हो जाएगा। इसमें 6,237 गांव और 1,617 वार्ड, लगभग 7800 यूनिट हो गए। हर गांव और हर वार्ड से आज एक एक पदाधिकारी आया है। तो आप सोच सकते हो, आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा के हर गांव में पहुंच चुका है और हर वार्ड में पहुंच चुका है। केवल यही नहीं, हर गांव में और हर वार्ड में 20-20 लोगों की कमेटी बन चुकी है। अगले 1 महीने के अंदर इन सारी कमेटियों की ट्रेनिंग होगी। गांव गांव में बदलाव यात्रा निकलेगी, पूरे हरियाणा में बदलाव यात्रा निकलेगी। और 1-1.25 महीने के बाद ये जो 20-20 लोगों की कमेटी बनी है, ये भी पदाधिकारी हैं, इन सारे पदाधिकारियों की लगभग 1.25 लाख पदाधिकारियों की दिसंबर के महीने में शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। जिस पार्टी के इतने पदाधिकारी हों, क्या उस पार्टी को कोई हरा सकता है? आज मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। તો ખરેખર આ વિડીયોમાં તમને થોડી પણ સચ્ચાઈ લાગી હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારો શું મંતવ્ય છે મને દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો। વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં અને અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો। નમસ્કાર।